Hello students, this is the second video on the chapter Money and Credit. In the first video, we had done till page number 42 where the heading Loan Activities of Banks is given. We had completed till that page. Now, in this video, we will start with another heading, and that is two different credit situations. In this video, we are going to read about that how credit become both an asset as well as a debt trap for a person. So, with the help of these two examples, which are given here in your text, it is explained that how, in some situations, and for one person, credit become very helpful. On the other hand, in second example, it is given that how credit become very problematic to a person. So, this is what we are going to read in this part, that credit or a loan can be helpful and cannot be helpful in some other situations. So, let's begin with the text. A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. So what they are written here, that how credit is very important part of our lives nowadays. Credit loan refers to an agreement in which they given the definition of credit. Credit or loan refers to an agreement in which lender means the person who is going to provide the loan. Lender supplies the borrower. Borrower meaning that a person who is going to take the loan with money. That means लोन का मतलब है कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लैंडर सप्लाई करता है बोरोवर को मनी, गुड्स और सर्विस, और इन टर्न वो एक प्रॉमिस लेता है कि इन फ्यूचर वो बोरोवर उसे उसका सारा पैसा जो है वो वापस कर देगा. सो दैट वी कॉल्ड क्रेडिट. नाउ लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू the following two examples. In two examples, there they explain that how credit is helpful in one situation but not helpful in other situation. So let us see these situations. First, they had given the festival season. It is a festival season 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim received the order from a large trader in town for 3,000 pair of shoes. There they given the example of Salim, who received the order of 3,000 of pair of shoes to complete in a month. To complete production on time, what Salim had done? क्या किया था उसने? कि उसने कुछ वर्कर्स को हायर किया फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क. ही हैज़ टू परचेज, और उसे क्या करना है? रॉ मटेरियल उसको परचेज करना है. अब इन खर्चों को उठाने के लिए रॉ मटेरियल के और वर्कर्स के सलीम ऑब्टेन करता है लोन को टू डिफरेंट सोर्सेज से. फर्स्ट सोर्सेज कि वो लेदर सप्लायर से सप्लाई लेता है लेदर की, एंड प्रॉमिस टू, और उसे प्रॉमिस करता है टू पे हिम लेटर, कि वो उसे जल्द ही पैसा वापस कर देगा उस लेदर का. दूसरा वो क्या करता है? वो ऑब्टेन करता है लोन कैश में एक लार्ज ट्रेडर से, और उसे वो ये प्रॉमिस करता है कि वो उसे एडवांस पेमेंट दे दे और वो उसे 100 पेयर्स ऑफ शूज़ जो है वो ऑन टाइम डिलीवर कर देगा एंड ऑफ द मंथ में. एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, क्योंकि उसे 3,000 पेयर्स का ऑर्डर मिला था. उसने 1,000 पेयर्स के ऑर्डर पर लोन ले लिया और अपने कुछ वर्क को कंप्लीट किया, और बाद में उन पेयर्स को उसने दे दिया. अब इस तरह से उसने दो लोगों से लोन लिया, एक तो लेदर सप्लायर से और दूसरा उस ट्रेडर से जिसने उसे क्या दिया था?
वो ऑफ़र दिया था 3000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने का। उसने 1000 पेयर ऑफ शूज़ पर उससे लोन ले लेता है वो, और उसका ऑर्डर को कंप्लीट करके उसके देता है ऑन टाइम। इस तरह उसे एक गुड प्रॉफिट मिल जाता है, और फिर वो जितना पैसा उसके पास आता है उसमें से उस 1000 पेयर का जो उसने बोला था देकर, उसको उसने लोन लिया था, वो उसको वापस दे देता है उस पैसे को। और बाकी जो पेयर्स ऑफ शूज़ का पैसा है, यानी 2000 पेयर ऑफ शूज़ का पैसा उसके पास बच गया, उसको वो यूटिलाइज़ करता है और अपना लोन भी वापस कर देता है। अब इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि लोन बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर द सलीम। In this case, Salim obtained credit to meet the working capital needs of production. The credit helps him to meet the ongoing expenses of production, कि जितने भी उसकी प्रोडक्शन में एक्सपेंसेस चाहिए थे, खर्चे चाहिए थे कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन को टाइमिंगली, वो उससे ही अर्न कर लेता है। तो क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाइटल मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पॉजिटिव रोल प्ले करता है इस सिचुएशन में। ऑन द अदर हैंड, सपनाज प्रॉब्लम, अब सपना की क्या प्रॉब्लम होती है, सपना भी लोन लेती है लेकिन क्रेडिट उसके लिए हेल्पफुल नहीं रहता। कैसे नहीं रहता है? स्वप्ना, अ स्मॉल फार्मर grows groundnut on her 3 acres of land. She takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation. वो किससे लोन लेती है? मनी लेंडर से, अपने खर्चों को उठाने के लिए कल्टीवेशन के, और ये सोचकर लोन लेती है कि जब हार्वेस्ट सीज़न आएगा तो वो उसे रीपे कर देगी। लोन को रीपे करना मतलब वापस लौटाना। लेकिन बीच में ही उसकी जो क्रॉप है वो उस पे कीड़े लग जाते हैं और वो क्रॉप फेल हो जाती है। ऑल्दो शी हैड यूज्ड एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स ऑन इट, उस पर बहुत ज़्यादा उसने खर्चीले जो पेस्टिसाइड्स थे उनको खर्च किया, लेकिन उसके बाद भी उसकी फसल जो थी वो ख़राब हो गई। अब उसके पास इतना पैसा नहीं है टू रीपे टू द मनी लैंडर, एंड द डेप्ट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। और एक साल में बहुत ज़्यादा उसका डेप्ट बढ़ जाता है। डेप्ट मतलब जो उसका ऋण है, जो उसने पैसा लिया है उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट भी देना है, जो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट ईयर सपना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर भी वो लोन लेती है, बट इतनी अर्निंग उसकी नहीं हो पाती कि वो अपने पुराने लोन को कवर कर सके। इस तरह वो डेप्ट ट्रैप में फंस जाती है। डेप्ट ट्रैप क्या होता है कि वो ऋण के जाल में फंस जाती है कि एक लोन का कंप्लीट वो नहीं कर पाती पैसा, और उसे दूसरा लोन लेना पड़ता है। तो एक के बाद एक उसके ऊपर जो ट्रैप है डेप्ट का वो बढ़ता जाता है। शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट। इवन उसे अपना कुछ पार्ट ऑफ लैंड जो है वो डेप्ट को चुकाने के लिए देना भी पड़ता है। अब इन रूरल एरियाज़, अब हम मोस्ट ऑफ द टाइम रूरल एरियाज़ में देखते हैं कि द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, कि रूरल एरियाज़ में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लोन लिया जाता है। क्रॉप प्रोडक्शन में हमें क्या क्या चाहिए होता है? सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर equipment. There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmer buy these inputs. अब फार्मर को इन सब इनपुट्स को लगाने में 2-3 महीने का टाइम चाहिए होता है, और वो ये जो लोन लेता है ये सोचकर लेता है कि 3-4 महीने के बाद जब हार्वेस्टिंग सीजन होगा तो ही विल बी एबल टू रीपे द लोन। But the repayment of the loan is crucially dependent on the income from the farming. अब ये भी एक सच है कि जो रीपेमेंट है उस लोन की वो किस पर डिपेंड करती है? फार्मिंग पर, कि उसकी फार्मिंग बेटर हुई है या नहीं हुई है। अब जैसे सपना की सिचुएशन में हमने देखा कि उसकी फार्मिंग ख़राब हो गई, सो दैट उसको बहुत ही उसकी सिचुएशन वर्स ऑफ हो गई, और उसे अब एक उसके ऊपर डेप्ट ट्रैप आ गया, यानी उसके ऊपर ऋण का जाल आ गया कि वो एक के बाद एक किस्मत फंसती जा रही थी, डेप्ट ट्रैप में फंसती जा रही थी। अब व्हाट इज़ डेप्ट ट्रैप? क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल, कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बोरोवर वो जो लोन लेता है
वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जिससे उसका रिकवर होना बहुत ही पेनफुल होता है। नाउ इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग। अब अगर हम बात करें इन दोनों एग्जाम्पल्स की, तो हमने ये देखा कि सलीम की सिचुएशन में लोन लेना उसके लिए बहुत हेल्पफुल था, बट दूसरी सिचुएशन में सपना के लिए लोन लेना बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि उसकी क्रॉप फेल हो गई थी। क्रेडिट ने उसे पुश कर दिया था डैप ट्रैप की तरफ। To repay her loan, she has to sell a portion, even she has to sell a portion of her land to repay the loan. So, from there, we concluded that credit would be useful or not. Therefore, depends on the risk in the situation. तो कि वो हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि कितना रिस्क लिया गया है, एंड वेदर देयर इज़ सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। और इस पर भी निर्भर करता है कि अगर उसे कुछ लॉस हो जाता है तो उसके लिए क्या हेल्प रहेगी। तो क्रेडिट हेल्पफुल रहता है कुछ सिचुएशंस में, हमेशा वो हेल्पफुल नहीं रहता। दैट वी have concluded from there. Now we move to another heading, and that is terms of credit. Terms of credit means terms of loan, terms of getting loan. अब इन different situations में कुछ situations दी गई हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि हर situation में credit की टर्म्स एंड कंडीशन डिफ़र हो सकती हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स कि लोन किससे लिया जा रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए लिया जा रहा है। तो क्रेडिट टर्म्स मे वेरी फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन, और फ्रॉम गेटिंग द लोन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो डिफरेंट होता है, वेरी करता है वो कि लोन किस से लिया जा रहा है, कैसी टर्म एंड कंडीशन रहेंगी। हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन सेम नहीं रहती हैं। तो आने वाले पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस को हम एनालाइज करेंगे कि जब अलग अलग तरह के लोगों से लोन लिया जाता है तो किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। दैट वी विल सी इन द अदर पार्ट. So let's begin with terms of credit. What is the meaning of terms of credit? Every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to lender along with the repayment of the principal. कि हर लोन एग्रीमेंट का एक इंटरेस्ट रेट होता है जो बोरोवर को देना ही पड़ता है। किसको? लेंडर को, जिसने लोन दिया है। उसके जितने पैसा उसने लिया है वो पैसा प्लस जितना उसको इंटरेस्ट देना है, तो वो उसकी रिपेमेंट कहलाती है। और ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है लोन लेने का, कि जब आप लोन लेते हैं तो जितना पैसा आपने लोन में लिया उस पर इंटरेस्ट रख के आपको देना होता है। इन एडिशन लैंडर्स में डिमांड कोलेट्रल ऑन द अदर हैंड, अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जो लेंडर है वो अपना पैसा दे रहा है तो ऑब्वियस है कि वो कुछ ना कुछ चीज़ एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखेगा। अब वो जो सिक्योरिटी है वो क्या कहलाती है? दैट वी कॉल्ड कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या है? कोलेट्रल इज़ एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, कि कोई भी ऐसा एसेट, कोई भी ऐसी संपत्ति जो किसके पास है? बोरोवर के पास, जो लोन लेने गया है। ओन्स, अब उसमें क्या क्या आता है? सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट्स विद बैंक, उसको दिखाकर वो लोन ले सकता है। तो इस तरह से जो लेंडर है वो भी सेव हो जाता है कि इफ़ सम हाउ बोरोवर वॉज नॉट, इफ़ बोरोवर विल नॉट बी एबल टू रीपे हिज और रीपे द लोन, then he or she will buy his property and get their money back. तो इस तरह से मतलब उन्हें सिक्योरिटी हो जाती है कि अगर हमने पैसा दिया है, अभी आगे हम फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से एक जो लेंडर है उसको सेटिस्फेक्शन होती है कि उसका पैसा मरेगा नहीं, उसका पैसा जो है उसको वापस मिल जाएगा अगर उसने क्या रखा है अपने पास? कोलैटरल एज अ सिक्योरिटी। If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral.
तो उस एसेट को, उस कोलेट्रल को बेचने का अधिकार होता है लेंडर को, अगर बोरोवर पैसा टाइमिंगली नहीं देता है। प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, अब वो कैसी प्रॉपर्टी है जिसको एज अ कोलेट्रल रखा जाता है? लैंड टाइटल्स, deposits with bank, livestock, some common example of collateral used for borrowing. Now we come to another heading, and that is a house loan. Up there they given one example that for getting the house loan, which kind of terms of credit can be seen? किस तरह की टर्म्स ऑफ क्रेडिट देखी जाती हैं अगर हम हाउस लोन लेने चाहते हैं? देयर दे एक्सप्लेन विद द सिचुएशन ऑफ मेघा. मेघा हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹5 lakhs फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस. वो 5 लाख लेती है हाउस परचेज करने के लिए और उसको एनुअली 12% इंटरेस्ट देना है और वो इंटरेस्ट उसे 10 ईयर्स में देना है. दैट मीन्स 5 लाख वो लेती है और एनुअली उस 5 लाख का 12% उसको सारा साल भर में देना है. और ये भी उसे जो जितना पैसा उसने लिया है, जो एक्चुअल मनी उसने लिया है, वो उसे 10 सालों में पे करनी है इंस्टॉलमेंट्स में. और साइड बाय साइड 12% पर एनम उसको क्या देना है? लोन देना है. नाउ मेगा हैड टू सबमिट द बैंक. अब मेगा को बैंक में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो अपनी सैलरी स्लिप पर बैंक से लोन ले लेती है क्योंकि पता है बैंक को कि गवर्नमेंट जॉब है उसकी और उसको टाइमिंगली क्या मिलती होगी? सैलरी मिलती होगी. तो वो इजीली, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इजीली लोन मिल जाता है उनकी सैलरी स्लिप पर. The bank retained as collateral the paper of the new house. इवन और क्या कर सकता है बैंक की? इतने अपने पास वो उस घर के पेपर्स रख सकता है कि जब वो अपनी पूरा पैसा सबमिट करा देगी तो वो पेपर उसको वापस कर दिए जाएंगे. सो दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन इन दिस केस. Now, interest rate, collateral, documentation requirement and the mode of repayment, underline it, or repayment together comprise is called terms of credit. So there they have given द डेफिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट कि इन सभी चीज़ों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट. किन किन चीज़ों को? इंटरेस्ट रेट हम देखते हैं, कोलेट्रल देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, मोड ऑफ रिपेमेंट देखते हैं कि मोड ऑफ रिपेमेंट क्या होगा. कुछ जैसे इस सिचुएशन में हमने देखा कि मोड ऑफ रिपेमेंट क्या है कि इंस्टॉलमेंट्स में उसको देना है, 12% उसको ईयरली लोन देना है उस मनी के ऊपर और नियर अबाउट 10 ईयर्स में उसको अपना पूरा पैसा कंप्लीट करना है जो उसने हाउस लोन के रूप में लिया है. तो यहाँ ये सिचुएशन है. एंड ऑल दी सिचुएशन कंक्लूडिंगली कॉल द टर्म ऑफ क्रेडिट इन दिस सिचुएशन. नाउ वी मूव टू some variety of credit arrangements. There they explain some variety of credit arrangements. जैसे हमने बिगनिंग में अभी किया था कि हर सिचुएशन में या हर पर्सन से अगर आप लोन लेते हैं तो हमेशा ही जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होंगी वो सेम नहीं होंगी. तो यहाँ अलग अलग पर्सनस की सिचुएशन बताई गई है और ये बताया गया है कि उन्होंने किससे क्रेडिट लिया और उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी. सो नियर अबाउट 4 टाइप्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस हम यहाँ पर देखेंगे फॉर गेटिंग द लोन. सो फर्स्ट दे एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ श्यामल. श्यामल की सिचुएशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसके पास 1.5 एकर्स ऑफ लैंड है. इससे पहले जब वो पैसा लेता था, मनी लैंडर से वो इंटरेस्ट पर लेता था, उस टाइम उसे 60% पर एनम, इतनी भारी मात्रा में उसे इंटरेस्ट रेट जो था 5% था उसको पर मंथ और साल भर में 60% वो हो जाता था, तो वो उसे पे करना होता था. अब धीरे धीरे उसने फिर क्या किया? एग्रीकल्चर ट्रेडर से उसने लोन लेना शुरू कर दिया. अब जो एग्रीकल्चर ट्रेडर है वो उसे 3% पर मंथ पर लोन दे देता है. बिगनिंग में जब क्रॉपिंग सीज़न होता है
तो वो जो ट्रेडर है उसे फार्मिंग इनपुट्स भी प्रोवाइड करा देता है, और साथ में वो ये प्रॉमिस करता है कि जैसे ही हार्वेस्ट होगी तो वो उसे पैसा दे देगा जो भी उसने लिया है। इस इंटरेस्ट रेट के अलावा ट्रेडर जो है वो फार्मर से प्रॉमिस लेता है कि वो फार्मर उसी को क्रॉप सेल करेगा। इस तरह से वो अपनी मनी की इंश्योरेंस कर लेता है कि भाई अब वो बेचेगा ही उसे, तो वो अपना पैसा रख लेगा जो भी उसने उसे लोन में दिया है। और इसके अलावा क्योंकि जब हार्वेस्टिंग सीज़न होता है तो फसलों के दाम थोड़े कम होते हैं, तो उस टाइम पे वो उससे ख़रीद लेगा और बाद में हाई प्राइसेस पर उसे बेचकर वो पैसा भी कमाएगा। तो इस सिचुएशन में शामल की हमने सिचुएशन को देखा कि और टर्म्स ऑफ क्रेडिट देखी कि जो मनी लेंडर से उसने लिया तो उसे 5% देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, उसने ट्रेडर से लिया तो उसे 3% देना पड़ रहा है। बट साथ में एक और सिचुएशन या एक और टर्म्स है उसके क्रेडिट देने की कि वो अनाज या जो भी क्रॉप है वो उसी ट्रेडर को बेचेगा जिसने उसे लोन दिया है। ऑन द अदर हैंड अब यहाँ पर सिचुएशन दी गई है अरुण की। अब अरुण की क्या सिचुएशन है कि उसके पास 7 एकर्स ऑफ लैंड है और वो सोनपुर में एक ऐसा पर्सन है जो कि बैंक से लोन लेता है और उसे पूरा साल भर में 8.5% ही परसेंट इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है और वो अगले 3 सालों में कभी भी बैंक को उसे चुका सकता है। तो अरुण रीपे करता है कि वो प्रॉमिस करता है कि वो लोन को रीपे कर देगा हार्वेस्टिंग सीज़न में, और उसके बाद वो एक और फ्रेश लोन लेगा जिसमें वो अपने पटेटोज़ को, जितनी भी उसकी क्रॉप हुई, उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देगा। कोल्ड स्टोरेज से उसे स्लिप मिल जाएगी कि वो उसका कोलेट्रल का वर्क करेगी। वो कोल्ड स्टोरेज की रिसिप्ट कोलेट्रल का काम कर देगी, क्योंकि वो दोबारा से फ्रेश लोन फिर ले सकता है बैंक से कि अगर उसने बैंक का पैसा वापस नहीं दिया तो कोल्ड स्टोरेज रूम की जितनी भी उसकी जो रिसिप्ट के अंदर या उस कोल्ड स्टोरेज के अंदर उसकी क्रॉप है वो बैंक उसको बेचकर और फिर अपना पैसा वापस ले सकता है। तो यहाँ पर अरुण की सिचुएशन में हमने देखा कि यहाँ टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिफरेंट है। नाउ वी कम टू रमा। अब रमा की सिचुएशन है, नेबरिंग फील्ड पर वो वर्क करती है और एग्रीकल्चर लेबरर है। बहुत सारे सालों से उसके पास काम नहीं है और अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए अचानक से अगर कोई बीमार पड़ जाता है, कोई फंक्शन होता है तो उसको लोन लेना पड़ता है। तो इस तरह से वो अपने एम्प्लॉयर पर डिपेंड है, जो लैंड ऑनर है उस पर डिपेंड है क्रेडिट के लिए। और लैंड ऑनर अगर उसे लोन देता भी है तो 5% पर मंथ वो उससे इंटरेस्ट लेता है और इसका रीपेमेंट वो कैसे करती है, उसकी ज़मीन पर वर्क करके। अब रमा को जब भी नया लोन लेना होता है तो उससे पहले उसको पुराना लोन पे करना पड़ता है। एट प्रेजेंट शी ओन्स द लैंड ऑनर ₹5,000, दो लैंड ऑनर डजंट ट्रीट हर वेल, शी कॉन्टीन्यूज़ टू वर्क फॉर हिम। अब यहाँ उसकी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि उसने इतना लोन दिया हुआ है कि उसको उसकी ज़मीन पर वर्क करना ही पड़ेगा, ऑल्दो ही इज़ नॉट treat her well. Rama tells us that the only source of credit for landless people in Sonpur are the landowner employers, कि जो एम्प्लॉयर्स, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं वो ही उन्हें एम्प्लॉय करते हैं, वो ही उन्हें लोन देते हैं। तो यहाँ डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस हमने की, लोन लेने की सिचुएशंस हमने की कि श्यामल ने किससे लिया लोन, मनी लेंडर से, ट्रेडर से, उसकी टर्म्स कंडीशन अलग है। अरुण ने बैंक से लिया, उसकी टर्म कंडीशन अलग है। रमा ने किससे लिया, लैंड लॉर्ड से लिया, जो लैंडलॉर्ड एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ सही व्यवहार नहीं करता, 5% इंटरेस्ट लेता है। तो हर सिचुएशन में यहाँ पर हमने देखा कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैसी हैं, अलग अलग हैं। अब लास्ट यहाँ पर दिया हुआ है लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। वन अनदर सोर्स ऑफ गेटिंग क्रेडिट इन रूरल एरियाज इज़ ऑल्सो द कोऑपरेटिव्स, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे कि देयर आर 2
हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि दो ऐसे सोर्सेज हैं क्रेडिट देने के। वो कौन कौन से सोर्सेज हैं? फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ये कॉपरेटिव्स किस में आते हैं? फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। जब हम बात करते हैं ना, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी लोन देने के दो ज़रिए हैं, एक तो है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। तो कॉपरेटिव्स किस में आते हैं? फॉर्मल्स में आते हैं। बिसाइड बैंक, अगर हम बैंक को छोड़ें तो हम ये देखते हैं कि एक और मेजर सोर्स है सस्ता लोन देने का रूरल एरियाज़ में, और वो कहलाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब कॉपरेटिव्स क्या होते हैं? दैट यू हैड लर्नड इन योर 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो, कि एक ही जैसी चीज़ की प्रोडक्शन करने वाले लोग जो होते हैं वो अपना कॉपरेटिव बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और वो सभी अब जितना भी फ़ायदा होता है या नुकसान होता है उस कॉपरेटिव का, उसमें बराबर के भागीदार होते हैं। Members of a cooperatives pool their resources for cooperation in certain areas. There are several type of cooperatives. इसे अंडरलाइन करेंगे। several type of cooperatives are there, क्योंकि एक जैसा काम करने वाले बहुत लोग होते हैं। लाइक फार्मर्स कोऑपरेटिव होते हैं, वीवर्स कोऑपरेटिव्स अलग होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स अलग होते हैं, कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन अ विलेज। यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कृषक कोऑपरेटिव को। Far away from Sonpur, it has 2300 farmer as member. It accept deposit from its member. अब मान लो ये कृषक कोऑपरेटिव है, यानी जितने भी कृषक हैं वो सोनपुर में इस कोऑपरेटिव के अंदर आते हैं, और ये जो कोऑपरेटिव है वो सिर्फ अपने मेंबर्स का ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, यानी एक बैंक की तरह ही कोऑपरेटिव वर्क करती है कि जितने भी कृषक हैं उस एरिया के, वो अपना अपना पैसा जो है उस कोऑपरेटिव में सबमिट कराएंगे, और वो कोऑपरेटिव फिर क्या करेगा कि जितना पैसा आ गया वो एज अ कोलेट्रल बैंक में देगा एक सिक्योरिटी के रूप में, और बैंक से फिर वो लोन ले सकते हैं। अब उस लोन से वो क्या करते हैं कि जितने भी मेंबर बने कोऑपरेटिव के, उन सभी में से किसी को भी अगर ज़रूरत होती है पैसे की, तो वो उस टाइम पीरियड में उसको दे देते हैं। तो इस तरह से एक अनदर राउंड ऑफ लैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब इसे ध्यान से समझेंगे कि जैसे कृषक कोऑपरेटिव्स की बात हो रही है, मान लो एक गांव है, सोनपुर एक गांव है, उसमें जितने कृषक हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, उन सभी ने पैसा इकट्ठा किया। अब वो जो पैसा है वो एक कोलेट्रल हो गया, एक सिक्योरिटी हो गई। उस सिक्योरिटी को वो बैंक में रख के वहाँ से क्या अटेन कर सकते हैं? लोन अटेन कर सकते हैं। अब उस कृषक कोऑपरेटिव के, सोनपुर में जितने भी कृषक हैं जो उस कोऑपरेटिव के मेंबर बन गए, वो क्या करेंगे, उनमें से किसी को भी लोन की नेसेसिटी होगी तो वो वहाँ से लोन ले सकते हैं, क्योंकि एज अ कोलेट्रल रख कर उस कोऑपरेटिव ने और ज़्यादा पैसा बैंक से ले लिया है। तो फिर वो पर्सन जिसको नेसेसिटी है, उस पर्सन को, उस मेंबर को, उस कोऑपरेटिव की जिसको नेसेसिटी है लोन की, वो कोऑपरेटिव से ले सकता है, और उसको फिर डिसाइड होता है कि उसे कितने इंटरेस्ट के साथ उसे कोऑपरेटिव में सबमिट कराना है, और उसके बाद कोऑपरेटिव उसे इंटरेस्ट को जो भी तय हुआ है बैंक के साथ वहाँ पर सबमिट कराता है। नाउ कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। अब मोस्टली ये जो कृषक कोऑपरेटिव्स हैं वो किन पर्पसेस के लिए जो किसान हैं उनको लोन देते हैं? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए, जो भी ज़रूरत होती है, कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर में, उनके लिए लोन्स फॉर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर ट्रेड, फिशरी लोन्स, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर हाउसेस and for variety of other expenses. So here we completed different credit situations कि हर जगह क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग होती हैं। किस पर डिपेंड करता है कि लोन किस से लिया जा रहा है और कौन पर्सन लोन ले रहा है। सो नाउ वी कम टू another heading, and that is formal sector credit in India. So there we will complete that there are two sources of credit in India: formal sources of credit
and informal sources of credit that we will do in another